morning, and today we are going to start how do metals and non-metals react, right? So for understanding this, that what is how bond formation takes place, or how do metals and non-metals react, we need to understand that there are two types of bonding that we will discuss in class 10th. One is ionic bonding and another is covalent bonding. Okay, so in this topic we are going to study ionic bonding. So before starting the topic, I want to revise the things that metals are obviously those atoms, those elements that have valence electrons 1, 2 or 3. Valence electrons, how many? 1, 2 or 3. If there are if there is one electron present in the outermost valence, means outermost shell, or 2 or 3 in any element, then that type of element is actually a metal, right? And what is a non-metal? Chemically, we can define non-metal by by the number of valence electrons. If it has 4, 5, 6, so 7, and in fact even 8 also. So such type of elements are known as what they are classified, they are categorized as non-metals. So if they have 1, 2, 3, you have studied about those elements that have those elements, their duplets are complete. There is only one element that we have discussed, which is helium. Okay, it has K shell, its atomic number is 2 and its duplet is complete, right? So it is quite inert, it does not react very often, और इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्ट नहीं करेगा. इट मीन्स कोई बॉन्डिंग इजीली नहीं होगी, केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनेगी. ऐसे ही आप अगर आपने और आपके एटॉमिक नंबर 20 तक यू हैव स्टडीड हीलियम, देन नियॉन and then argon. You must remember neon की atomic number 10, configuration 28. Atomic number of argon is what? 18 and its configuration is 288, right? So इनकी क्या है? Octet is complete. If you remember class 9th में हमने ये सब पढ़ा है. Their octet is complete, so what? They don't take part in chemical reactions. तो अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे कि इनमें रिएक्शन कैसे होता है, तो क्या होता है? देखिए, मेटल्स में 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स in order to be stable, and they tend to acquire the nearest noble gas configuration. Nearest noble gas configuration, right? Similarly with non-metals. Non-metals 4 है, तो 4 का तो हम बिल्कुल स्पेशल केस कार्बन पढ़ेंगे हम इन चैप्टर 4. हम 5, 6 और 7 की बात कर रहे हैं. 8 तो कंप्लीट ही है, तो 5 है, 6 है, 7 है, तो दे टेंड टू gain electrons, right? And when they tend to gain electrons, they acquire negative charge. Similarly, when metals tend to lose electrons, they acquire positive charge, right? Positive charge क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो number of electrons is less actually than number of protons. जैसे अभी अगर आप बात करें सोडियम की, सोडियम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. Sodium, it has atomic number 11. Its electronic configuration, if you write, it's 281, right? So when so we know that in an electrically neutral atom, number of protons is equal to number of electrons. Protons, number of protons is actually 11, and number of electrons is 11, right? But when sodium, it has 1 electron in its valence shell, when it will lose 1 electron, it will acquire positive charge. You know the reason? Because right now, how many electrons in the positively charged sodium ion? कितना होगा? Number of protons will remain 11, but number of electrons will decrease to 10. Okay? So 1 unit positive charge ज़्यादा है, right?
तो Na+ जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्जेस एटम पे आते हैं, वो आयन बन जाता है, इट इज़ नो लॉन्गर एन एटम। ऐसे इसी केस में नॉन मेटल्स का भी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन, सपोज क्लोरीन हैज़ एटॉमिक नंबर 17, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287। तो क्या होगा, इट इज शॉर्ट ऑफ व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इफ इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी व्हाट, 288 हो जाएगी, विच विल रिजेंबल टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। सोडियम ने किसकी तरह एक्वायर करी, टू द नियरेस्ट नोबल गैस विच इज व्हाट, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 था, सोडियम ने कॉन्फ़िगरेशन कैसी कर ली, नोबल गैस की तरह, इन ऑर्डर टू बी स्टेबल, वरना स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो 288 जब इसकी कैसे एक्वायर करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट समझिए। सो आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट, आयनिक बॉन्ड, वेयर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन आयंस. This type of bond is very, very strong, and it has one more name. It is known by the name of electrovalent bond also, or this pen is not working, let me use this, or electrovalent bond, right. आपने नाइन्थ में वैलेंसीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोवेलेंट इसीलिए बॉन्ड विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो वो कैसा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद एग्जांपल्स. आई होप दैट आफ्टर 3 or 4 examples the concept of ionic bond will be clear to you. So let me start with NaCl. Very quickly I am going to start with NaCl. So I am explaining you the formation of sodium chloride, that how sodium chloride exists and what type of bond formation takes place. So let me start with Na. Na is the symbol for sodium. If I am writing atomic number, its atomic number is 11, which I already told you. Electronic configuration 281, right? ये अगर clear नहीं है किसी भी बच्चे का तो please 9th स्टैंडर्ड से पहले आप ये स्टार्ट करिए आयन फॉर्मेशन, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड, राइट। सो सोडियम का 281 हो गया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, ओके, मैं भी इससे डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड दीज आर द 3 शेल्स, के शेल, फर्स्ट शेल के, अनदर शेल L which has 8 electrons, right, and 1 electron, valence electron. Okay, so this is the structure of sodium. Sodium will let me write chlorine. Chlorine atomic number 17, electronic configuration will be 287. तो क्लोरीन कैसा बनेगा, क्लोरीन कैसा होगा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, and all of you are expected to draw the structure. K shell, L shell, everyone knows L shell can accommodate 8 electrons to the maximum, and we have 7 electrons right here, 4 5 6 7, 1 is left. So this extra electron of sodium is going to be transferred to क्लोरीन एटम, राइट। तो जब ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, वन एटम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अनदर इज गेनिंग, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, आयनिक बॉन्ड, विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें शेयरिंग नहीं है, इसमें क्या हो रही है, ट्रांसफरेंस हो रहा है, एक दे रहा है, वन इज डोनर, अनदर इज एक्सेप्टर। तो कैसे स्ट्रक्चर, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसको आप कैसे और शो कर सकते हैं, without wasting time you can write Na will lose 1 electron minus E and will acquire a positive charge, isn't it? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na plus plus electron, यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं 281 and here 28 only, 28, okay. Now in case of chlorine, आप क्लोरीन का कैसे लिखेंगे, क्लोरीन हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, सो Cl माइनस, क्या कॉन्फ़िगरेशन थी 287,
नाउ इट इज 288. आई होप ये समझ में आ रहा है. अब हम ये कैसे शो कर सकते हैं? आई एम राइटिंग हियर. How can you show? Just see in ionic bond or in covalent bond when you will study covalent bond. So what we need to show is actually the valence electrons only. We are not concerned with the inner shell electrons that are present in the inner shell. तो सिर्फ बाहर का ही इलेक्ट्रॉन शो करके आपको उसको दिखाना है, अदरवाइज यू स्ट्रक्चर विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वन एटम जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी शोन बाय डॉट एंड अदर एलिमेंट दैट इज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, उसका कैसा हम दिखाएंगे, बाय अ क्रॉस. सो दैट जब आप फाइनल स्ट्रक्चर देखें तो आपको समझ में आता है कि विच एलिमेंट इज डोनर हियर और विच वन इज एक्सेप्टर हियर. सी आई एम यूजिंग अ डॉट. लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1. सो आई एम राइटिंग शोइंग डॉट हियर और प्लस Cl. हाउ मेनी, 7. तो आई एम शोइंग विद अ क्रॉस. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे. तो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट. और क्या हुआ, Na has acquired positive charge, right, and in the meantime chloride ion is negatively charged, 1 negative charge. इतना समझ में आया. Why negative? Now it has obviously more number of electrons than protons. अब ये एटम नहीं है, ये क्या है, अब ये आयन बन गया, ये भी आयन बन गया. अगर आपसे कोई पूछे कि what are the ions which are responsible for bond formation, name ions of sodium chloride, तो आप क्या लिखेंगे, sodium ion, Na+, always show with symbol also, and chloride ion, Cl-. This is Na+, it is a cation, it is an anion. तो हम इसको ज़्यादातर कैसे लिख देते हैं, आपने अभी तक 9th में 10th में भी जो पढ़ते आ रहे हैं वो कैसे, NaCl लिखते हैं ना, वी डोंट शो चार्जेस, राइट. एक चीज़ ये, इसे हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, ये पहली बात, मॉलिक्यूल नहीं, इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ आयन. क्या है ये, एग्रीगेट ऑफ आयन्स है ये. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड इट डज नॉट. This is the first example. Now the second example that I want to explain you is of magnesium chloride, right. So second example is of magnesium. अब आपको ये समझ में आ गया कौन से आयंस है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, Na+ Cl- will be what, NaCl, simply NaCl. Now magnesium chloride. Now magnesium chloride. Magnesium का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो first thing that you know is atomic number. Its atomic number is what, 12. So I'm starting with first, second, third shell, 2 electrons here. All of you can do this. 8 electrons in L shell and 2 electrons in the valence shell. Now chlorine, magnesium chloride means chlorine atoms थे जिन्होंने गेन करे इलेक्ट्रॉन्स किससे, फ्रॉम मैग्नीशियम. अब आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें 2 है ना, और हम अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो वी नो दैट क्लोरीन एटम इज ओनली शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट करता है क्लोरीन, राइट. in order to acquire the nearest noble gas configuration which is of argon 288. तो एक अगर ये देगा तो फिर एक अभी तो अभी बचा है इसके पास, तो ये तो अनस्टेबल रहेगा अभी भी. सो हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर रिक्वायर्ड, 2. इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू 2 क्लोरीन एटम्स. कैसे करेगा, this is Mg, this is the structure of chlorine atom. ओके बहुत अभी तो बहुत ख़राब स्ट्रक्चर बन रहा है, बट आई होप आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे. बोर्ड पे तो ऐसे ही होता है. 4 5 6 7 8 एंड हियर 7, राइट. 4 हो गए, 5 6 7. Here also I am starting with the L shell, 2, then 8 electrons in L shell, 4 5 6 7 8, and in M shell
2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So 7 electrons in chlorine atom. So they are short of one electron each. One electron will be transferred here and one electron will be transferred here. This is electron transfer, right? Electron transfer or transference of electrons. So you can understand now that how bond formation will take place. So let me write with the symbol equation. So what do we have? Magnesium 282, right? It will lose 2 electrons and will acquire what? Mg2 plus charge. Magnesium, this is magnesium atom and this is what? Magnesium ion. ये क्या बन गया? Magnesium ion, right? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2 plus 2 electrons. All right. Now क्लोरीन का क्या था? 287. क्लोरीन is 287. तो one electron will be gained by 1 chlorine atom. तो इसी तरह से हम 2 chlorine atoms के लिए क्या कर सकते हैं कि 2 वो करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो अगर आप इसको कैसे शो करेंगे? Mg2 प्लस क्या बन जाएगा? Mg2 प्लस, इसको हम पहले ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से दिखा देते हैं. देखिए ये 288 हो गया. यहाँ पे फिर अब हम 2 लगा देंगे 2 क्लोराइड एटम. देखिए Mg, आई एम शोइंग विद अ डॉट, राइट, प्लस क्लोरीन वन साइड एंड ऑन अनदर साइड ऑल्सो. अभी पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करा था पूरा आपको. अब मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको शो कर रही हूँ. ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड हियर. ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके. ओके, तो ये आपका क्या बन गया? इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये इसने लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट? क्लोरीन के कितने आयन्स हैं? 2 है. और हर आयन पे कैसा चार्ज है? 1 नेगेटिव चार्ज. तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं. इजीली आई थिंक समझ में आ रहा होगा. इसको आप शॉर्ट में, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं ऐसे करके. यहाँ लिखिए बाहर, राइट? तो ये क्या हो गया? MgCl2, राइट? क्योंकि आप देखेंगे चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल. ये 2 पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे जब 2 लगा हुआ है तो इट मीन्स व्हाट? 2 नेगेटिव चार्जेस एज देयर आर 2 क्लोराइड आयंस. तो यहाँ पे अगर आपसे पूछूं बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हुआ? मैग्नीशियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, राइट? नाउ थर्ड एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. हाँ, उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई है. देखिए बोर्ड की कॉपीज़ जब चेक करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन एरर्स बच्चों के दिखते हैं. और वो क्या होता है, जैसे कभी आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ पाए, सो ऑब्वियसली यू विल एंड अप बाय राइटिंग रॉन्ग आंसर, इजंट इट? जैसे कि अगर फॉर्मेशन पूछा है, मैंने जो कॉमन एरर्स देखे हैं, अगर सोडियम क्लोराइड का आपसे फॉर्मेशन पूछा है तो कुछ बच्चे जो 9th क्लास में उन्होंने पढ़ा है, क्रिस क्रॉस वैलेंसीज कर दी एंड दे हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ NaCl. तो वो ऐसे ही कर देते हैं. Na+1 ऐसे कर दिए, Cl-1 क्रिस क्रॉस कर दिए एंड NaCl. इस केस में जब आप 10th में आ गए तो फॉर्मेशन का पूरा मीनिंग क्या है? यू हैव टू शो द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड देन हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 आयंस. ओके, तो इस केस में अगर आपने ऐसे शो कर दिया तो ऑब्वियसली यू विल लूज मार्क्स, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, राइट? तो पूरा आपको जैसे मैंने समझाया आपको उस हिसाब से लिखना है इफ द फॉर्मेशन इज आस्क्ड. तो लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम क्लोराइड. ये सब बच्चे कर सकते हैं आई थिंक. कैल्शियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 28. Sorry, I started writing electronic configuration. Its atomic number is 20, right? Electronic configuration is what? 2882. ठीक. अब क्लोरीन का भी हम देख सकते हैं. क्लोरीन की क्या है एटॉमिक नंबर?
ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा अच्छे से. वी आर डूइंग थर्ड एग्जाम्पल 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, राइट. अब इसको आप कैसे शो करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम एटम 2, 7, राइट. 2 वैलेंस सेम केस एज दैट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, बस आपको एलिमेंट चेंज हो गया है ये. सो कैल्शियम यहाँ पे 2 शो कर दीजिए और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ऐसे ही. नेक्स्ट, कोई भी आपको नॉन मेटल दिया जा सकता है जो आपने पढ़ा है और एटॉमिक नंबर टिल 20 तक आपको दिया जा सकता है और उसको आपको अच्छे से फिर उसका स्ट्रक्चर बना के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स शो करने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस दिखा देना, थोड़ा दिमाग लगा लेना है. लाइक कैल्शियम हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो गया Ca2+, और ये हमारे पास क्या है क्लोराइड आयन, कितने 2, तो आप लिख सकते हैं CaCl2. कुछ लोग यहाँ पे भी शो कर देते हैं 2 क्लोराइड आयंस, फिर उसके बाद लिख दिया जाता है CaCl2, Ca2+ और 2Cl-. ओके, यहाँ भी इसका सेम मीनिंग है. तो ये आपका क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड. एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी डिस्कस कर लेते हैं. We know that magnesium atomic number is what? 12. Atomic number is 12 and electronic configuration is 282, right? और ऑक्सीजन की कितनी है? अगर आप इस पे पहले अगर हम इसकी ही बात करें तो मैग्नीशियम देखिए, it has 2 electrons in its valence shell, so it will lose 2 electrons easily, isn't it? And it will give to that element which is short of 2 electrons. तो ऑक्साइड की बात हो रही है, तो अभी हम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग 282, राइट. इट हैज़ lost 2 electrons, so Mg2+, or you can write Mg gives Mg2+ plus 2 electrons. I hope मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है आपको. Its electronic configuration is now 28, which resembles that of neon. Now oxide. ऑक्साइड कैसे बना? आप जानते हैं जितने नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उसमें अगर आइड लग जाता है. ओके, तो ऑक्सीजन है आपके पास. इट हैज़ configuration 2,6. You know why? Because its atomic number is what? 8. So electronic configuration is 2,6. Okay, so it is short of, if you write noble gas configuration 2,8 होनी चाहिए. स्टेबल होने के लिए it will obviously gain 2 electrons from the one which is going to have extra electrons. तो क्या बन जाएगा? ये O2 नेगेटिव बन जाएगा. ओके, ये ऑक्सीजन एटम था, ये क्या बन गया? ऑक्साइड आयन. ओके, तो आप ही कैसे शो करेंगे? ट्रांसफरेंस से Mg11 प्लस 1 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6. ओके, ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट दीज आर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन गया आपका? Mg2+, it is 2 and this is O2 negative, or simply you can write MgO.